Yeah. Good morning, friends, uh, students. Today I'm going to talk about the important guidelines for AKTU exam. Okay, so in these guidelines, I will discuss how to prepare for the mock test, how to appear in the mock test, what is the way to appear in the mock test. These all things I'm going to discuss. Okay, so important thing is that you should know the website. So the website of AKTU exam is aktuexam.ac.in. You have to go to this website aktuexam.ac.in and you will receive an email where you will get ID and password. Okay, ID may be your roll number, enrollment number, similar, and password will be generated by AKTU. So they will provide you password, the same password that will be working for you, and the ID you will receive an email that can be in your roll number, it can be enrollment number, like that. Okay, so just you have to wait for the email from AKTU. That email will give you the that will also tell you that where you should go for the mock test. The website for mock test is aktuexam.in. When you go to aktuexam.in, you will receive, you will get this page. Okay, are you able to see? I will just show you this page. You will get where you can log in. You can type your ID, like whatever roll number you have received, you can write your roll number here. For example, 2003 1 2 3, like that, 4 5, and then 1 2 3 4 5, like that. So if you can enter your password here and you can write your roll number. Okay, after this you just have to uh, see that take care that the browser that you are going to use should be either Chrome or Mozilla. The condition is that you should use Chrome or Mozilla. You should not use Safari browser for this purpose. Remember that Safari browser is not allowed in this case. You have to use either Mozilla or Firefox. Okay. Second thing to take care while doing this exam is that you can use mobile phone. So in mobile phone, generally Chrome is there, so you can use Chrome of the mobile phone, no problem. Next thing is that what is the website for mock test? Where should I go for mock test to appear? So friends, I would like to tell that the website for mock test is the same as the website for main test. I had just displayed the website for main test, that was aktuexam.in. So same website is for mock test also. Okay. Next thing is that we have to think about the timing of mock test, that when at what time mock test will be conducted. So there is no special schedule that for this the mock test is open every day, every time, 24/7. Therefore mock test, because mock test is not a proctored mock test is just to practice the interface, but so always remember that the actual exam is proctored, there will be invigilator. So remember this point, and that mock test is not same as the main test. The questions also are not same. So you also remember that now exams are started. So on the exam day, the mock test will open from 6 p.m. to 7 a.m. only. Means from evening 6 p.m. up to next day morning 7 a.m. you can appear in the mock test. Okay. Okay, so then next thing is that what is the where should I
what should I do? Okay, so where after the I will appear in the mock test. So when you log in the website, you will receive a registration form, or in the website. So in this registration form, what is there, that in the registration form some details are there, so you can verify your details. But don't worry, even some little mistake is there, so that can be corrected later on. But most of the things should be correct. I think they will be correct. Below in the this orange color, that there is uh, you can proceed. Means you just click on the agree. I agree that all the details are correct, and click on the proceed button. When you click on the proceed button, then you can go for the face training and mock test. So after this, I think this will close, and you have to log in again. So it will show you that thank you, your application is now complete. You have to log in again for the face training. So now you have to log in again into the website, and when you log in again, then only you will be able to use it. So use same login ID and password to log in again, and go to the website again, the same website aktexam.in, and then it will go start face training. You see in the there is, it is showing that here you can say click after you it is showing your face. You can click on take photo. When you click on take photo, it will take your photo, and there is some condition that you are sitting in a proper illuminated room. You are in the middle of the frame. You are not using any mask. See, a mask is not allowed in this, so you should not wear mask because you are sitting alone in the room. um, okay, so you use the same device which we will use for the test. So you have to ensure that you are using the same device which you will be using for the test, final test. Okay, so because we are training the face, with the same face will be matched with the devices. Okay, so just after the face training, it will go further. It will show you the test available for you. Okay, so now it will be showing the what are the different tests that are available for you. Okay, so this these different tests that are available for you, you can check what are the tests that you can appear. Okay, after checking the test that you can appear, you can go click on the I want to green button. So continue button. Just when you click on the this continue button, it will your test will be started. So we are going to start the test now. Just a minute. Okay, so just after this, after clicking here, you will see just. So it will now please proceed with the system check before starting the test. So before starting the actual test, it will test for the camera first, then for microphone you can check the browser, you can check the internet speed. So if everything is okay, you can proceed now. Okay, so if everything is okay, if everything looks okay, then you can click on the green button proceed now. Okay, so when you click on this green button, you can go to the next window. Okay, so here you just click and you can go to the next window. Okay, so let us go click and go to the next. See, we are just before starting, it will show you some instructions. So now this screen is to wait for some time. Here you have to wait for some time because this screen is giving some information, some important instructions are here in this screen. Therefore you should wait for some time over this screen. Do not go away from this screen till the time you complete the process. You just read all the instructions properly here, and you just after reading these instructions,
only if you have completed the instructions, you can see there are some instructions available here. See this screen, and it is showing that this is the power failure. What you have to do? There is no negative marking. Please attempt all questions. There are two sections in this. So do not turn off your audio video during the exam. Your system screen will be captured automatically throughout the exam. So all the things are being recorded. Your audio is being recorded. Your screen is also being recorded. Okay. So in case of internet failure, do not close your screen. It will automatically resume when the internet is okay. And you can contact the test administrator by the chat. Okay. Now there is one instruction that as this exam is the remotely proctored, so please make sure that you have the webcam and face tracking is enabled in this examination. Candidate needs to read the instructions carefully and check the acceptance button and click to proceed now. Proceed now स्टार्टिंग में का ग्रे रहेगा, इसलिए आपको कुछ देर वेट करना है. वेट करना पर्पजली उसको ऐसा बनाया गया है जिससे कि कैंडिडेट कुछ देर तक वेट करें, और वेट करने के बाद आप इस प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर पाएंगे. तो प्रोसीड नाउ पे आपको क्लिक करने से अभी ये ग्रे है, कुछ देर बाद ये ग्रीन हो जाएगा. जब ये ग्रीन हो जाएगा तब आप इस पर क्लिक कर सकते हो. ओके. तो ये पर्पजली ग्रे बनाया गया है जिससे कि आप यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकें. ठीक है. तो अच्छी तरह से आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, और तभी आपको जाना है. फ्लैग्स के बारे में बताया है कि कौन सा फ्लैग क्या कलर रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सेप्टेड अनअटेम्प्टेड ये फ्लैग का क्या मीनिंग है, सब कुछ आपको समझाया गया है यहाँ पे कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस की मार्किंग होगी, क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, और ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है इस सब के बारे में. ठीक है. तो इसलिए आप वेट करो, पढ़ो, और पढ़ने के बाद जब ये ग्रीन हो जाता है तब आप इस पर क्लिक कर सकते हो. अब आपका टाइम स्टार्ट होता है. ओके. तो हमने इसके अभी इसके ग्रीन बटन, ये देखो यहाँ पे ग्रीन हो गया है, और ये जब ग्रीन हो गया है तब आप इस ग्रीन बटन पे क्लिक कर सकते हो, और क्लिक करने के बाद और इस पे आगे भी बढ़ सकते हो. ओके. तो मैं अब आपको बता दूं कि ये जब आपको ग्रीन बटन यहाँ पे दिखने लगेगा तब आपको तभी इसके आगे बढ़ना है, और आगे जब आप बढ़ोगे ग्रीन बटन पे आपको क्लिक करना है. ग्रीन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि हमारा जो है कंप्लीट जो टेस्ट हो रहा है ये पूरा का पूरा प्रॉक्टर्ड है. यहाँ पे पर्सन बैठे हुए हैं जो मुझे कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए एग्जाम के बीच में कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो, आपका एग्जाम डिस्टर्ब हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है. ठीक है. तो आपको कभी भी ट्राई नहीं करना है दूसरा विंडो तो ओपन करना ही नहीं है. जो भी विंडो ओपन है वही विंडो आप ओपन रहने दीजिए. आपको कुछ भी नेविगेशन नहीं करना, इवन पॉपअप ब्लॉक नहीं करना है. तो आपके ऐसा नहीं कि आपके ब्राउजर में पॉपअप्स आते हों अपने आप, कुछ प्रॉब्लम है तो उसको आप एक बार अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लीजिए जिससे कि पॉपअप नहीं आना चाहिए. पॉपअप भी आपके नेविगेशन में काउंट होगा. आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कुछ नेविगेशन से अलाउड हैं, 1 2 3 या जो भी हैं वहाँ पे काउंट निश्चित है, उसके बाद आपको आगे अलाउ नहीं किया जाएगा, आपका एग्जाम बंद किया जाएगा. देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 4 आउट ऑफ 15 वार्निंग. 4 आउट ऑफ 15 वार्निंग का मतलब है कि ये आपकी वार्निंग्स को काउंट करता जा रहा है कि हमने आपको कितनी वार्निंग दे चुके हैं नेविगेशन के रिगार्डिंग. ठीक है. तो ये आउट ऑफ 15 दे रहा है, आपको हो सकता है 15 से भी कम यहाँ पे वार्निंग कम हो सकती है. ठीक है. यहाँ पे आपको क्वेश्चंस का पैनल एक बना हुआ दिखेगा, यहाँ पे MCQ दिया हुआ है, यहाँ पे इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं. ओके. तो इन सब चीज़ों को आप यूज कर सकते हो. ओके. तो हमने ये देखा कि क्या एग्जाम कैसे होगा, इसमें क्या क्या है और किस तरीके से कंडक्ट होगा. अब मैं टेस्ट का स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ. ये टेस्ट स्क्रीन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप कैसे टेस्ट में अपीयर होगे, और इस टेस्ट स्क्रीन को आप देख लीजिए कैसा है. ये टेस्ट स्क्रीन कैसा है. ठीक है. टेस्ट स्क्रीन चेक कर लीजिए,
और टेस्ट स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर है और साथ में ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। उन ऑप्शंस पे आप क्लिक कर सकते हो और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो भी आपने उस ऑप्शन करेक्ट क्लिक किया है वही ऑप्शन उसमें सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट में भी जा सकते हो, ऑटो नेक्स्ट भी क्लिक कर सकते हो, ऊपर में सेक्शन भी चेंज कर सकते हो, कैलकुलेटर भी अवेलेबल है इसमें। आप ऊपर ध्यान से देखिए, कैलकुलेटर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर आपको वहीं पे भी कैलकुलेशन की ज़रूरत है तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर इसका भी यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर आप अपना भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और व्यू इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे जाके आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हो। कभी रिस्पॉन्स आपने गलत लगा दिया, जैसे मान लो इसको टिक कर दिया, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको भी हटा सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम ये टेस्ट स्क्रीन के बाद आपको बता दूँ मैं एक और चीज़ की टेस्ट स्क्रीन को कैसे कैसे यूज करना है, इन सब के बारे में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। जब आप इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं, जो स्टार्टिंग में बताया था वो आप कभी भी बीच में उसको पढ़ सकते हो। ये इंस्ट्रक्शंस आप हमेशा अवेलेबल रहेगा आपको पूरे के पूरे टेस्ट के बीच में। यहाँ पे देखिए आपका फ़ोटो भी दिखाई देता है, क्योंकि या तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली फ़ोटो भी, आपका फ़ोटो भी आपके ऑब्जर्वर को कंटिन्यूसली दिखाई देगा। कुछ इमेजेस कंटिन्यूसली चेक होती रहेंगी। ठीक है, वो आपके वीडियो को भी मॉनिटर कर सकता है, ऑडियो को भी मॉनिटर कर सकता है। ठीक है, जब आप पूरे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। सबमिट ऐसे नहीं हो गया, लोग कहते हैं नहीं हमसे गलती से सबमिट हो गया सर, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। सबमिट अपने आप होता ही नहीं। सबमिट होने से पहले एक बार पॉपअप आएगा, उस पॉपअप में आपको ये दिखाया जाएगा कि ये जो पॉपअप है, इस पॉपअप में ये आपको क्लियरली लिखा रहेगा कि डू यू वांट टू सबमिट। जब आप कह दोगे कि यस आई वांट टू सबमिट, तभी वो सबमिट करेगा। अगर आप यस नहीं करोगे कि नहीं कि मुझे अभी वेट करना है, मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये सबमिट नहीं होगा। तो सबमिट होने से पहले आपको एक बार नोटिफिकेशन जरूर दिखाई देगा। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, ये होता है वो होता है। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, ऑटोमेटिक सबमिट नहीं होता है। दो रीजन से सबमिट होता है, या तो आपने कुछ ब्राउज़र ओपन किया है, या कुछ नेविगेट किया है, या कुछ गलत कर रहे हो, जिसकी वजह से प्रॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा था, आपको वार्निंग दे रहा था, लेकिन आपने माना नहीं, इस वजह से आपका एग्जाम एंड हो गया। एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा, आपने नेविगेशन किया अननेसेसरी, तो एआई ने ऑटोमेटिकली आपका एग्जाम क्लोज कर दिया। और भी कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया बहुत देर के लिए, या आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, आपका ऑडियो वीडियो काम नहीं कर रहा, तो वो भी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऑटोमेटिक सबमिट नहीं होता है, आप ही सबमिट करते हो और आपके ही सबमिशन से ये सबमिट होता है। तो सबमिशन कंप्लीटेड लिख के आएगा, यू हैव सबमिटेड सक्सेसफुली लिख के आएगा, और सबमिशन कंप्लीटेड ये आपका यहाँ पे ग्रीन ऐसी स्क्रीन हो गई, और आपको ये सेशन सबमिशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये तो अभी कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ कि प्रॉक्टर आपका क्या करेगा। प्रॉक्टर एग्जाम के ड्यूरेशन में कैंडिडेट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करने के लिए होते हैं, तो वो आपको कंटिन्यूसली ऑल द टाइम देखते रहते हैं। एट एनी टाइम प्रॉक्टर हैज एन ऑप्शन टू सेंड ए वार्निंग मैसेज। वार्निंग तो सेंड कर ही सकता है, आपको इम्प्रॉपर कंडक्ट में वो UFM भी लगा सकता है। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सही करोगे तो कोई ऐसे UFM जानबूझ के नहीं बनाता। ठीक है, तो आप इस बात से डरिए मत, बट आपको भी केयरफुल रहना है। ठीक है, प्रॉक्टर आपको वार्निंग भेजेगा, चैट आपको दिखेगा एग्जाम के बीच में। कैसा दिखेगा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो आप उसमें कुछ चैट ऑप्शन से आप कुछ क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो लाइव वीडियो कैंडिडेट की भी वो प्रॉक्टर चाहे तो देख सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रॉक्टर क्या करेगा वो बात। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, चैट स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे प्रॉक्टर लिख रहा है हेलो। प्रॉक्टर ने लिखा हेलो, आप यहाँ पे कुछ भी रिप्लाई मैसेज लिख सकते हो, आई एम फाइन, यस सर लिख सकते हो आप यहाँ यस सर लिख के एंटर करोगे तो अपने आप वो प्रॉक्टर के पास चला जाएगा। ठीक है, तो आप चैट कर सकते हो प्रॉक्टर के साथ में। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पर क्लिक करोगे तो क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्वेश्चंस देख सकते हो, क्वेश्चन फिर से अप्लाई कर सकते हो। बीच बीच में
कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी प्रॉक्टर की हेल्प ली जा सकती है चैट की हेल्प से, ठीक है। तो उसमें आप चैट का हेल्प लीजिए। अब आपको क्या करना है वो बातें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में कि आपको क्या क्या करना है। तो आपको एक तो कंप्लीट होने से पहले कभी भी सबमिट नहीं करना, ये बात आपको खुद भी जानना चाहिए कि आप सबमिट कर दोगे तो आप दोबारा अपीयर नहीं हो सकते, रीअपीयर नो, रीअपीयर उसमें नहीं मिलेगा, आपका टाइम चला जाएगा। निश्चय आप फ़ोन करते रह जाओगे लोगों को कि सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है, मेरा सबमिट हो गया है, वो आप कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना ही है बिल्कुल कि आपको बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आपका किसी भी कारण से ये ये हो जाए, मतलब क्या बोलते हैं कि कभी भी आपको सबमिट नहीं करना। कुल मिला के मेरे ये कह रहा था, डू नॉट मिसबिहेव विद द प्रॉक्टर, प्रॉक्टर के साथ में आपको बिहेवियर खराब नहीं करना है, आपका बिहेवियर बिल्कुल सही होना चाहिए प्रॉक्टर के साथ में। जो भी वो बोल रहे हैं वो आप करते जाइए। अब वो बोलेंगे नहीं अपना आईडी दिखाइए तो आप अपना आईडी दिखाइए जिससे कि वेरीफाई हो सके कि आप प्रॉपर पर्सन हो। और किसी के साथ बात मत कीजिए कि आपने सोचा कि नहीं वहाँ पे कौन देख रहा है कौन सुन रहा है, मैं बैठा लेता हूँ किसी दूसरे पर्सन को अपने साथ में, उसको बोलूँगा कि ये सर्च कर दो वो सर्च कर दो, और वो बात नहीं करना। अब बात करोगे तो तुरंत पकड़ में आ जाओ। कीप डोर ऑफ द रूम लॉक, अगर आप अपने घर पे हैं तो रूम लॉक करके रखिए, किसी दूसरे की आवाज़ें बार बार बीच बीच में नहीं आना चाहिए। और रूम के अंदर दीवारों पर भी कुछ मत लिख के रखिए, अगर आप दीवार पर लिखोगे तो भी वो आपको रूम कैमरा रोटेट करने के लिए बोलेगा और देख सकते हैं। फॉर्मल ड्रेस पहन के रखिए, आपको एक डिसिप्लिन और प्रॉपर स्टूडेंट बन के बैठना है। कंप्यूटर आपको ऑन कर टर्न ऑन योर कंप्यूटर बिफोर टाइम, तो आपको टाइम अगर आपका 9 बजे का है, 9 AM आपका एग्जाम में अपीयर होना है, तो आपका कंप्यूटर 8:45 पर AM पर ऑन होके रखा होना चाहिए। आप इंटरनेट चेक कर लीजिए, सारी चीज़ें चेक करके रखिए आपका कंप्यूटर, ऐसा नहीं कि उसी टाइम पे ऑन कर रहे हैं फिर सिस्टम उसमें अपडेट कर रहा है और अपडेट होते होते पता चला कि टाइम ही निकल गया और आपका लॉस हो गया, और जो कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बाद में फिर कहते रहे लोग कि सर मेरा पता नहीं क्या हो गया था, मेरा सिस्टम उस समय ऑन ही नहीं हो रहा था, बहुत देर तक अपडेट ही हो रहा था। तो आपकी प्रॉब्लम, इसमें उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने कोई मतलब सिस्टम का क्या प्रॉब्लम, आपने सिस्टम को ऑन करके नहीं रखा इसलिए आपका सिस्टम वर्क नहीं कर रहा। ओके, तो आप अपने कंप्यूटर को पहले से चेक कर लीजिए, ऑन करके रखिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर मोबाइल जो भी आपको यूज़ करना है उसको कम्प्लीटली चार्ज करके रखिए। ये नहीं है कि उस समय वहाँ पे जाके मतलब कह रहे हैं कि नहीं सर चार्जिंग ख़त्म हो गया है बीच में तो मैं क्या करूँ। चार्जर वगैरह भी पास में रखिए और उस सिस्टम को कम्प्लीटली चार्ज करके रखिए। अगर आपने चार्ज करके नहीं रखा और बीच में बंद हो गया तो किसका लॉस होगा, आपका ही लॉस होगा। और इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ आपको कि आपको अपने सिस्टम को पूरी तरह से चार्ज करके रखना। सिस्टम को यूज कर रहा हो तो सिस्टम को चार्ज करके रखिए, लैपटॉप को यूज कर रहे हो तो लैपटॉप को में प्रॉपर बैकअप रखिए, मोबाइल यूज करना है तो मोबाइल में बैकअप रखिए, टैबलेट यूज कर रहे हो तो टैबलेट में भी प्रॉपर बैकअप होना चाहिए। अगर बैकअप नहीं होगा और बीच में बंद हो गया तो ये आपको ही प्रॉब्लम होगा उससे, ठीक है। और ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डेमो टेस्ट में अपीयर होइए, डेमो मत छोड़िए। कुछ लोग डेमो स्किप कर लेते हैं कि चलो देखेंगे उसी समय, हम लोग तो बहुत नॉलेजेबल हैं, हम लोग कंप्यूटर साइंस के या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आईटी के स्टूडेंट हैं, एक्सपर्ट हैं ये सब चीज़ों में, एग्ज़ाम देते ही रहते हैं। ऐसे क्या दिक्कत होने वाली है, एग्ज़ाम दिक्कत हो सकती है, ठीक है। एग्ज़ाम की टेबल पर बुक्स मत रखिए, दीवार पर कुछ मत लिखिए, जो भी स्टेशनरी रिक्वायर्ड है जैसे पेन पेंसिल रफ शीट वगैरह उनको आप अपनी टेबल पर रखिए। अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, सारी सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो इमीडिएटली आपको अपना फ़ोन रखना है, फ़ोन से कॉल लगाना है हेल्प सेंटर। हेल्प सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। हेल्प सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है वो भी बहुत ये कॉमन, उन्होंने एक हेल्पलाइन बनाई हुई है
हेल्पलाइन का नंबर है 012-067-40122। एक IVR इंटीग्रेटेड वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है, जहाँ पर कई लोग बैठे रहते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो वो आपके क्वेश्चन का जरूर, जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए जरूर करें, ठीक है। तो इस पर कॉल कीजिए और आप तुरंत आपको कॉल करना है जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होता है। बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आपका ही लॉस होगा। ओके, तो क्या सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, आपके सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, ये भी शॉर्ट में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपकी इंटरनेट स्पीड प्रॉपर होना चाहिए, मिनिमम 512 kbps स्पीड तो होना ही चाहिए। मिनिमम 2 GB का रैम होना चाहिए, भले ही आप क्या सिस्टम यूज कर रहे हैं या मोबाइल यूज कर रहे हैं या कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो 2 GB का रैम सफिशिएंट है। 2 GB रैम में आप आराम से यूज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ हो सकता है और यानी एंड्रॉयड फ़ोन हो सकता है। तो ब्राउज़र गूगल क्रोम यूज़ करना है आपको और मोजिला यूज़ करना है, सफारी या कोई दूसरा ब्राउज़र यूज़ नहीं करना, ठीक है। वेब कैमरा, माइक्रोफोन मस्ट बी अवेलेबल आपके सिस्टम में या लैपटॉप में। वेब कैमरा, माइक्रोफोन जो भी है वो सब कुछ सारी चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो नहीं है तो जिससे कि कुछ प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू ऑल। these were some of the basic guidelines to appear in the online exam. Okay, so ID and password are being shared to all of you using email, and if still there is some problem, then you can contact to the inquiry number of AKTU online exam 012-120-6712. Okay, thank you all, thank you so much for watching.